Today we are going to discuss about the rise of nationalism in Europe. The sub-concept from here we are going to discuss is, the first is a new conservatism after 1815, second concept Treaty of Vienna, and the last concept is the revolutionaries. Let's look into one by one. The word conservatism means the traditional or do not want to change their own ideology. So here you look, the conservative regime of 1815 is divided into two parts. One is rigid and another is flexible. At the initial stage, they were rigid because they wanted to preserve their monarchy, church, social hierarchy and property. It means that when there are the chances to change, they are against the social changes by the conservatism regime of 1815 towards the rigid part. In the later time period, they stressed on the reform to strengthen the autocratic monarchy with the help of modern army, dynamic economy, abolition of feudalism and serfdom, efficient bureaucracy. So when they want to take some changes, it means that they right now liberal. So conservative regime was rigid. In the later time period, they become little bit liberal towards their own thought with different method. यहाँ पे जो बोला गया है कंजर्वेटिव रिजाइम, यहाँ का पर्टिकुलर मीनिंग है कि जो लोग का चिंताधारा में बदलाव लाने को नहीं चाहते थे, अर्थात उन लोग राजा का शासन, चर्च में रहना चाहते थे, सोशल हायरार्की जो था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, उसको वो लोग रोकना चाहते थे। लेकिन जो इसके अगेंस्ट में थोड़ा सा आके मॉडर्न डायनामिक इकोनॉमी, फ्यूडलिज्म को एबोलिश करना, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेटिक करना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म। तो कंजर्वेटिव रिजाइम में एक पूरा कंजर्वेटिव थे और एक थोड़ा सा लिबरल थे। सो कंजर्वेटिज्म एंड लिबरलिज्म। लुक हियर टू द एंड ऑफ नेपोलियनिक era during the Battle of Waterloo in 1815. So to end the expansion of France under the Napoleon Bonaparte, one treaty was signed by the Britain, Prussia, Persia and Austria under the leadership of Austrian Chancellor Duke Metternich, known by the term Treaty of Vienna of 1815. नेपोलियन का एक्सपेंशन को हटाने के लिए उसी पर्टिकुलर टाइम पे एक ट्रीटी ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया के बीच साइन हुआ, जिसका नेतृत्व ऑस्ट्रियन का चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने लिया और वहाँ पे उन्होंने उसका आगे करते हुए क्या हुआ, नेपोलियन एरा को वहाँ पे उन्होंने ख़त्म किया है। यह जो है पर्टिकुलर ट्रीटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। Under this treaty, what happened? Under this treaty, Bourbon dynasty was restored to power in France. The Bourbon dynasty in France was only the Louis XVI restricted France expansion. France का expansion होना बंद कर दिया गया by confiscated annexed territory from France. France ने जो एरिया लिया था उसको अपने हाथ में रख दिया गया। एंड स्टेट्स were set on boundaries of France. स्टेट्स were set on मतलब नेदरलैंड जैसा ये एरिया है, वहाँ पे क्या हुआ, स्टेट were set on France on boundaries of France. And whatever the 39 states, German states were created by the Napoleon Bonaparte, these were left untouched or not broken again and again. You look that the particular in the eastern part, Russia was given part of Poland while Persian was given a portion of Saxony. मैप में भी देखो रशिया का क्या दिया गया है, पोलैंड का एरिया, पर्सिया के पास क्या है, किंगडम ऑफ सैक्सोनी का एरिया। द मेन इंटेंशन was to restore the monarchy that had been overthrown by the Napoleon and create a new conservatism order in Europe. जो नेपोलियन के टाइम पे जो बर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रोन किया गया था, मोनार्की को ओवरथ्रोन किया गया, उसको रिस्टोर करना इसका मेन एम था। वहाँ पे देखो सम किंगडम ऑफ नेदरलैंड गिवन एंड सम एरिया पीडोमेंट was given the area of Genoa and some 39 German confederation states had been set up by the Napoleon was left untouched, जिसको हम मैंने किसमें रेड कलर का ये में दिखाया हूँ, पर्टिकुलर रेड कलर का डायग्राम में। नेक्स्ट ये देख लो, Netherlands, which included Belgium, was the set up in the north, and Genoa was added to Piedmont in the south.
Clear up to this? So the conservative regime of 1815, they did not tolerate the criticism and dissent, मतलब disagreement, उनके साथ कोई अगर एग्री नहीं है उनको वो टॉलरेट नहीं कर सकते थे. दे ऑल्सो इम्पोज द सेंसरशिप लाइक नेपोलियन. एस्टैब्लिश्ड ऑटोक्रेसी, वो अपने हाथ में लेजिटिमेट रखते थे, अपने हिसाब से सब कुछ करना उन लोग चाहते थे. ऑल्सो ट्राइड टू कर्ब द एक्टिविटीज with what the most of them imposed the censorship law to control what was said in newspaper, books, play and song and reflected the idea of liberty and freedom. जो भी उन लोग बुक न्यूज़पेपर से उन लोग अपना आइडिया ऑफ लिबर्टी फ्रीडम पेश करना चाहते थे उसके ऊपर इम्पोज किया गया. और उन लोग का ये है कि उनके गवर्नमेंट को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. मीन्स ट्राई टू कर्व एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट. द रिवोल्यूशनरीज they started the secret societies, they started oppose the monarchical forms, fought for the liberty and freedom. देखो एक तरफ में क्या है कंजर्वेटिव रिजाइम चल रहा है, दूसरा तरफ में नेशन में क्या है रिवोल्यूशनरी पैदा हो रहे हैं जो कि सीक्रेट सोसाइटी बना रहे हैं, मोनार्की फॉर्म को अपोज कर रहे हैं. दे ऑल्सो फाउट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम, उन लोग लिबर्टी और फ्रीडम के लिए भी. वन सच रिवोल्यूशनरी वॉज गैसेपी मेजिनी गिवन इन दी दैट स्टाम्प कार्ड. यू लुक द गैसेपी मेजिनी born in Genoa in 1807 and became a member of the secret society of the Carbonari as a young man of 24 and he was sent to exile Liguria. देखो वहाँ पे मैप में दिया है जिनोआ में उन्होंने पैदा हुए थे और पैदा होने के बाद उन्होंने सब्सिक्वेंटली 2 सोसाइटी फाउंड किए. एक है यंग इटाली इन मार्शलाइज, मार्शलाइज लोकेटेड इन फ्रांस, यंग यूरोप इन बेरेनी दैट इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड. उनके ये जो पर्टिकुलर सीक्रेट सोसाइटी एक डेंजरियस हुआ किसके लिए, कंजर्वेटिज्म रिजाइम के लिए. सो यू लुक द पर्टिकुलर लिगुरिया वहाँ पे उन्होंने जो रिवोल्यूशन किया था वो फेलियर हुआ था. लेकिन लेटर टाइम पीरियड में कंजर्वेटिव के साथ जो रिवोल्यूशनरी आइडिया था खास करके जो गैस्पी मेजिनी का, तो वहाँ पे ड्यूक मेटरनिक, द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक जो कि कंजर्वेटिज्म के साइड में थे, उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किए. द मेटरनिक डिस्क्राइब गैस्पी मेजिनी एज द मोस्ट डेंजरियस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर, कि ये सबसे बड़े शत्रु है.